He's being accompanied by a special team of the intelligence and investigative officials. As per the sources, the special plane carrying Rana will halt between an undisclosed location for refueling before reaching New Delhi. As per the sources to NewsX, Rana will also be the first in the NIA custody. He will be taken directly to the NIA headquarters, where he will undergo a medical test and will be produced in the NIA court. The NIA will seek 27 to 30 days custody of Rana. He is likely to be presented at Patiala House Court. He will either be produced physically or via video conference. As per sources, he is likely to be taken to Mumbai after a few weeks, where a case will be filed against him. All right, my colleague Aditya Vadavan is there with me live on the broadcast from the NIA headquarters. Aditya, as what we are learning is that there are repercussions of what Rana was accused of, and the new chapter in India's terror fight is now scripted, because as he comes, the agencies have made enough preparation, and also the NIA is likely to seek the custody for a month. Absolutely, Simran. If you see, as soon as he lands in Delhi, NIA will seek his custody and take him into custody, and then the normal course of interrogation will go on. It is expected that when NIA questions Rana in detail, it is expected that he will reveal many more leads as to who all more such terrorists from Pakistan belonging to Lashkar-e-Taiba were involved in the plotting of 26/11 Mumbai terror attacks. Let us just put this into perspective that after 2008, when these Mumbai terror attacks happened, Indian government had reported regularly submitted dossiers to the Pakistani government, which gave a proof that that the Pakistani people were involved in orchestrating this attack. And at that time, the Interior Minister of Pakistan, Rahman Malik, completely did not respond to the Indian dossiers that was sent by the Indian government, by the then Indian government. And now it was still, at that time also, the Pakistani government was in a denial mode. But all the documents pertaining to this case, point to the fact that the main key conspirators, who were Zakir Rahman Lakhvi and David Coleman Headley, were involved in plotting 26/11 Mumbai terror attacks. Yes, Simran. But all right, Aditya, as in fact you are putting out these details, let me also go across to my colleague Javed as to what is the update that he's tracking as far as his health status is concerned, and the medical that is going to be undertaken by the NIA is concerned. All right, Javed, what are you picking up as far as him being produced in Patiala House Court is concerned, briefly? और देखिए, आज छुट्टी है, और जिस तरीके से तौर राना जब भारत लाया जाएगा, उसके बाद उसका एक प्रोसेस होता है, जो लीगल प्रोसेस होता है। तौर राना का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद उसके बाद उसे जो एनआईए कोर्ट है, वहां पे उसे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब एनआईए का जो एनआईए कोर्ट है, वो दिल्ली का पटियाला कोर्ट है, वहां पर है। और वहां पर क्या तौर राना को फिजिकली एनआईए की जो टीम है और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में वहां पर प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि आज छुट्टी भी है, तो क्या ड्यूटी मजिस्ट्रेट या फिर जो कंसल्ट एनआईए कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट होंगे, वहां पर उसे पेश किया जाएगा, या फिर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। ये अभी साफ उस वक्त हो पाएगा जब तौर राना को लेकर एनआईए की जो टीम है, जो स्पेशल 7 लोगों की जो टीम है, जो अमेरिका गई हुई थी, उनके आने के बाद और तौर राना के एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद ये पूरा डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि प्रोसेस है मेडिकल के बाद उसे एनआईए कोर्ट में प्रोड्यूस करना, क्योंकि वहां उसके बाद से ही एनआईए की टीम जो है वो तौर राना को लेकर जो है वो रिमांड मांगेगी। और जानकारी के मुताबिक ये रिमांड लंबी हो सकती है, क्योंकि एक लंबा अरसा है, साल 2008 के बाद, इस आतंकी हमले के बाद, और साल 2025, एक लंबा अरसा, 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। तो ऐसे करीब 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, और ऐसे में जिस तरीके से पूरा
एक आतंकी हमले को जो मॉड्यूल को टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया गया, जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ऐसे में कई सवाल है, इंटरनेशनल कनेक्शन है, इसके अलावा भारत में कौन कौन सा नेटवर्क है, कौन कौन सा नेक्सस है, कहाँ पर कौन से हैंडलर्स हैं, क्योंकि लश्कर ए तौयबा का इसमें नाम आया, इसमें हूती आतंकी संगठन का नाम आया। कई आतंकी जो है पाकिस्तान बेस्ड जो है वो पाकिस्तान में बैठे, जिन्होंने इस पूरे आतंकी हमले को कराने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। इसके साथ ही कई जगहों का, कई लोकेशंस, कई टारगेट का जो है वो रैकी किया गया था। एक लंबी प्लानिंग की गई थी, जिसमें खुद डेविड कॉलमैन हेडली जो की है वो तहर राना जो कि एक पाकिस्तानी मूल है, लेकिन कनाडा के सिटीजनशिप ले रखा है उसने, तहर राना ने। तो इनकी एक पूरी प्लानिंग थी किस तरीके से यहाँ पर एक फर्जी जो है जो प्लेसमेंट का जो ऑफिस है उसको यहाँ पर दिखाकर बुलाना भारत में, उसके बाद से पूरी तरीके से इस कॉन्स्पिरेसी को रचना। और जिस तरीके से 2008 के बाद साल 2009 में एनआईए जो देश की सेंट्रल जांच एजेंसी है, उन्होंने इस केस को एफआईआर जो है दर्ज किया एनआईए में। उसके बाद इस पूरे केस को आगे बढ़ाते हुए एक लंबी जो है इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया है। और आज यानी कि गुरुवार के दिन ये एक पूरी लंबी लड़ाई जो कहीं ना कहीं पूरी होने जा रही है। तो कई ऐसे सवाल है, कई ऐसे लोकेशन है, कई ऐसे नेटवर्क है जिसका खुलासा करना बाकी है, जिसमें तहर राना का होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसलिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी। और जिस तरीके से अमेरिका के की सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तहर राना के मामले को, यानी कि पूरी कानूनी प्रक्रिया जो कि 26/11 का आतंकी हमला था, जिसमें बड़े होटल से लेकर कई लोकेशंस को टारगेट किया गया, टेरर मॉड्यूल के जरिए, आतंकियों के जरिए पूरा अंजाम दिया गया, और पानी के रास्ते यानी कि समुद्र के रास्ते एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत इन आतंकियों को वहां भेजा गया, जिसमें मुंबई पुलिस के कई जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो शहीद हुए हैं। और उनकी शहादत अब कहीं ना कहीं पूरी होने जा रही है। तहर राना को लेकर जो अब कानूनी जो पूरा एक मामला प्रक्रिया वो शुरू होने जा रहा है। तो अब सारे देश के साथ तमाम लोगों को इंतजार है कि तहर राना को लेकर एजेंसी किस वक्त पहुंचती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे से पहले जो है तहर राना को लेकर जो एजेंसी वो यहाँ पर पहुंचेगी और भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद एनआईए के साथ, यानी कि एनआईए सेंट्रल एजेंसी के साथ देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है Request you to kindly stay on with us as we are also